thermodynamic process and its type. A transition from one equilibrium state to another is called a process. Okay, in thermodynamic process, one of the state variable remains constant. Now what is state variable? In previous lecture we have seen about the initial and state function and path function. Okay, what is state variable? State variable is pressure, volume and temperature. When temperature remain constant and pressure volume will change, it is one of the type 1 process. Okay, when temperature remains constant, it is known as isothermal process. Okay, first is isothermal process. It is a process in which temperature of the system remains constant throughout the transformation. In such process, heat flows from the system to surrounding and vice versa, so as to keep the temperature constant. For a given temperature, the internal energy U of the system remains constant. Okay, and change in temperature is equals to 0 and change in internal energy is equals to 0. Now what is internal energy of the system? In gaseous system, in ideal gas or any gas, when it close in a movable piston or in the cylinder of containing gas, ideal gas, the molecules of ideal gas remains in random motion. Okay, so the energy, the kinetic energy the molecule which possess is called internal energy. When temperature is changed, the internal energy of the system will change. Okay, number of molecules N, R is gas constant and N we consider the number of molecule. Okay, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी. ओके, और इंटरनल एनर्जी को डिनोट करते हैं यू से. पोटेंशियल एनर्जी तो रहेगा ही नहीं है गैशियस मॉलिक्यूल में, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है गैशियस मॉलिक्यूल कंटिन्यूस रैंडम मोशन में रहेंगे. ओके, और एक कंटिन्यूस प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, तो इंटरनल एनर्जी उसमें रहेगा सम अमाउंट. ओके, एंड टेम्परेचर पे अगर ज़ीरो है, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी लिखेंगे. टेम्परेचर लिखना है तो सिर्फ टी से डिनोट करते हैं. ओके, और चेंज इन टेम्परेचर अगर लिखना है तो डेल्टा टी. डेल्टा टी टेम्परेचर अगर हम चेंज नहीं करते तो ज़ीरो है चेंज इन टेम्परेचर. इंटरनल एनर्जी तो होगा उसमें, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी ज़ीरो. ओके, और इंटरनल एनर्जी को डिनोट करेंगे यू से. तो आइसो मीन्स सेम, टेम्परेचर सेम रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस. ओके, तो इट इज़ कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस. इन दिस प्रोसेस वन वेरिएबल इज चेंजिंग, दैट इज टेम्परेचर, that is pressure and volume, and one variable temperature is remain constant, and heat flows from system to surrounding. okay, heat जो है सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में फ्लो होगा टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए. ओके, तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस. ना सेकेंड वेरिएबल है प्रेशर. अगर प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं तो the process is called isobaric process. isobaric process, बार जो यूनिट है वो प्रेशर का यूनिट है. इन isobaric process the pressure remains constant during the transformation. okay, during the chemical transformation pressure will remain constant. In laboratory, chemical reaction are carried out in open containers and constant atmospheric pressure. ओके, ओपन कंटेनर में रिएक्शन है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कंटेनर क्लोज नहीं है. ओके, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा. मींस चेंज इन प्रेशर इज ज़ीरो. प्रेशर कांस्टेंट है, ना ही इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, तो हम डेल्टा पी क्या लिखेंगे? ज़ीरो. तो दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें two variable, that is temperature and volume remains constant. Now if volume remains constant, it is called isochoric process. okay,
It is a process during which volume of the system remains constant during the transformation. A chemical reaction carried out in a closed container is isochoric. For isochoric process, delta V is equals to 0. For isothermal process, delta U, that is internal energy, and delta T is equals to 0. For isobaric process, delta P, change in pressure, will be 0. For isochoric process, delta V, change in volume, will be 0. Okay, in pressure, volume और ये टेम्परेचर इज स्टेट फंक्शन. ओके, और पाथ फंक्शन के लिए हमने वर्क और हीट जो देखा था वो पाथ फंक्शन था. सी, वर्क एंड हीट विल बी पाथ फंक्शन. The properties which depend on path are called path function. Okay, and the properties of the system which depends on the initial and final state only. Okay, तो उसको हम state function बोलेंगे. Now, fourth process is adiabatic process. A process in which there is no exchange of heat between system and surrounding is an adiabatic process. Heat को हम डिनोट करते हैं Q से. Q will be 0. Q is equals to 0 for adiabatic process. हीट जो है एक्सचेंज नहीं हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. ओके, इन adiabatic process the system is completely insulated from the surrounding. For exothermic process, heat is released which rises temperature of the system. If process is endothermic, the temperature falls. This results in either increase or decrease of internal energy. Okay, first process में isothermal process में internal energy, change in internal energy will be 0. and in adiabatic process में अगर exothermic reaction हो रहा है okay, तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम का कम होगा, इंटरनल एनर्जी सिस्टम का कम होगा. एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा सिस्टम का, U इंक्रीज होगा. ओके, और Q की वैल्यू जो हीट की वैल्यू 0 होगी. नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इट्स कॉल्ड adiabatic प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम कंसिडर करते हैं कि कुछ गैशियस सिस्टम है. ओके, इसको कंसिडर करते हैं जो क्लोज्ड है विथ मूवेबल पिस्टन. ओके, जैसे कि दो पॉसिबिलिटी है वर्क की. अगर गैस का एक्सपांशन हो रहा है, ओके, इफ गैस एक्सपांड्स द पिस्टन मूव्स अपवर्ड. ओके, गैस अगर कॉम्प्रेस्ड हो रही है तो पिस्टन जो है डाउनवर्ड मूव करेगा और वॉल्यूम कम होगा. ओके, तो फर्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2. हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डीकम्पोजेस इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, गैस मॉलिक्यूल इवॉल्व हो रहा है. ओके, तो फर्स्ट केस में बिफोर द रिएक्शन द सिस्टम containing only liquid molecule or liquid part. Okay, and reaction proceed or reaction after reaction completed. Okay, gas evolved, that is oxygen gas evolved and piston will move upward direction. Okay, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर जो है सिलेंडर के, जो सिलेंड्रिकल वेसल है, इसमें जो इंटरनल प्रेशर है वो इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल. ओके, तो ये प्रेशर इंक्रीज करके इस पिस्टन पे ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. ओके, आफ्टर द रिएक्शन. तो ये एक्सपांशन का एग्जांपल है. नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो कॉम्प्रेस्ड हो रहा है. इफ़ NH3 गैस जो है ऑलरेडी सिस्टम में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गैस है और HCl गैस एंड NH3, अमोनिया गैस एंड HCl गैस will react to give NH4Cl. ओके, अमोनियम क्लोराइड. तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl फॉर्म हो रहा है सॉलिड NH4Cl. ओके, तो गैशियस मॉलिक्यूल जो है वो गैशियस मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा. ठीक है, रैंडम मोशन में होगा तो वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे, बिफोर द रिएक्शन वॉल्यूम ज़्यादा होगा. ओके, और आफ्टर द रिएक्शन वॉल्यूम विल बी डिक्रीजेस बिकॉज सॉलिड मॉलिक्यूल इज फॉर्म, दैट इज NH4Cl. तो यहाँ पे गैस जो हो रहा है कॉम्प्रेस हो रहा है, मीन्स प्रेशर रिलीज हो रहा है. ओके, प्रेशर इज रिलीजिंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन.
तो ये दो टाइप के रिएक्शन हो रहे हैं, एक्सपांशन एंड कंप्रेशन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन हम किसको बोलेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन अगर इंटरनल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों भी कांस्टेंट हो रहे हैं, ओके। फॉर एग्जांपल इसमें गैस रिलीज हो रहा है, ओके, और ऊपर से हम प्रेशर और ऐड कर रहे हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है साइमल्टेनियसली, तो प्रेशर क्या होगा फिर? मैकेनिकल प्रेशर कांस्टेंट होगा, ओके। तो यहाँ हम क्या कंसिडर करते हैं? कंसिडर अ गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर, ओके, फिटेड विथ अ मूवेबल पिस्टन। लेट द एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल बोलेंगे हम ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द पिस्टन, ओके, इसको हम P एक्सटर्नल बोलेंगे, जो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया है P एक्सटर्नल। यहाँ पे मैंने डायग्राम नहीं लिया, सॉरी। P एक्सटर्नल ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द पिस्टन बी सेट इक्वल टू प्रेशर P ऑफ द गैस। जो गैस मॉलिक्यूल्स है उसका प्रेशर क्या है? P, और एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई कर रहा है उसको हमने P एक्सटर्नल बोला है, ओके। नेदर एक्सपांशन और नॉर कंपेरिजन ऑफ गैस अकर्स, मतलब गैस में एक्सपांड भी नहीं होगा और गैस का वॉल्यूम भी कम नहीं होगा, ओके। अ सिस्टम इज देन सेट टू बी अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग। दो अलग अलग केसेस देखा अभी हमने, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 एंड फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl। एक में जो हो रहा है गैस एक्सपांड हो रहा है, ओके, वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है, और दूसरे में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ गैस, ओके। तो अगर ऐसा प्रोसेस जिसमें ना ही एक्सपांशन हो रहा है और ना ही वॉल्यूम रिलीज हो रहा है, गैस रिलीज हो रहा है और एक्सपांड हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे, ओके। अगर P एक्सटर्नल हम रिड्यूस करते हैं तो पिस्टन जो है स्लोली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। एक्सटर्नल प्रेशर हम रिमूव करते हैं तो गैस क्या होगी? एक्सपांड होगी स्लोली, यस, सो दैट इट बिकम्स ग्रेटर देन P, ओके, क्योंकि गैशियस मॉलिक्यूल का प्रेशर P है और एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल है। अगर हम P एक्सटर्नल रिलीज करते हैं पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में, पिस्टन जो है मूवेबल पिस्टन है वो अपने आप अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ गैस, ओके। तो ऐसा प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, ओके, उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। फॉर दिस सिस्टम इन अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग, infinitesimal change may cause the process to occur in reverse direction. The process is then said to be a thermodynamically reversible. A process conducted in such a way so that every stage of driving force due to pressure P is infinitesimally greater than opposing force due to external pressure and which can be reversed by slight change of opposing force is reversible process, okay। मतलब इसमें जो है प्रेशर अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इंटरनल प्रेशर रिलीज होता है, ठीक है। तो ये जो है रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे हम इसको। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में था, कॉन्सेंट्रेशन जो हो रहा था रिवर्स हो रहा था, यस, A से B जितना नंबर ऑफ मोल B फॉर्म हो रहा है, डायरेक्शन जो है रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके A का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल है, ओके। ये जो पिस्टन का एग्जाम्पल लिया है सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है और एक्सपांशन का एग्जाम्पल लिया है, इसको हम प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क बोलेंगे, ओके। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर को हम F/A, कितना एरिया पर हम जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उसको प्रेशर बोलेंगे, ओके। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं P इंटू V इज इक्वल्स टू F/A, P is F/A, force per unit area into volume। वॉल्यूम फोर्स जो है, वॉल्यूम जो है D3, ओके, D3 मतलब जितना डिस्टेंस कवर किया है उसने। एक्सपांशन होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ तक गैस मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में ये वॉल्यूम था सिस्टम का, यस। आफ्टर एक्सपांशन द डिस्टेंस कवर बाय द सिस्टम इज D, ओके, हम इसको D कंसिडर करेंगे।
तो यहाँ पे डिस्टेंस वॉल्यूम के लिए लिखेंगे डी क्यूब और एरिया स्क्वायर में लिखते हैं हम तो डी स्क्वायर. ओके, एफ अपॉन ए इज एफ अपॉन डी स्क्वायर इन टू वॉल्यूम इज डी क्यूब. ओके, डी स्क्वायर कैंसिल होगा. एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वर्क, मैकेनिकल वर्क. और थर्मोडाइनमिक में जो वर्क होता है वो प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क है. तो W इज इक्वल्स टू पी वी. ओके, W इज इक्वल्स टू पी वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम. और वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. नाउ लेट अस एक्सप्लोर द प्रेशर वॉल्यूम विथ टू केमिकल रिएक्शन इन सिलेंड्रिकल इक्विप्ड with frictionless movable piston attached with certain mass of its outer surface. Same example है decomposition of H2O2, hydrogen peroxide expansion, ठीक है. And another example is reaction between NH3 gas and HCl. As the reaction progress, gases are consumed resulting in decrease of volume. Okay, गैसेस कंज्यूम हो रही है तो और सॉलिड फॉर्मेशन हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा. द पिस्टन मूव डाउन, अ डिक्रीज इन हाइट ऑफ द मास इज शोन इन द फिगर. ओके, यहाँ पे हाइट इंक्रीज हो रहा है एक्सपांशन में. तो दो तरह के वर्क होंगे. ठीक है, फर्स्ट साइन कन्वेंशन क्या होता है वर्क के लिए और हीट के लिए. हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो साइन क्या लगेगा. ठीक है, वर्क हमने देखा ना. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ हीट. हीट को हम डिनोट करेंगे Q से. लाइक हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच द सिस्टम एक्सचेंजेस एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग. व्हेन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग आर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, हीट either flow in or let out of the system. Sign convention for W and Q, work and heat. If plus Q is there, heat is absorbed by the system, okay, from the surrounding. Heat कौन absorb कर रहा है, system. कहाँ से absorb कर रहा है, surrounding से. अगर sign positive है तो okay. If minus Q is there, if sign is negative for Q, heat is released by the system to the surrounding. System heat release करेगा सराउंडिंग में. ओके, रिएक्शन के और प्रोसेस के बिटवीन में. इफ प्लस W इज देयर और पॉजिटिव साइन इज देयर, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग. वर्क किस पे हो रहा है, सिस्टम पे हो रहा है बाय द सराउंडिंग. ओके, इफ W इज नेगेटिव, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. ओके, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. नोट W एंड Q आर पाथ फंक्शन. W और Q जो है वो स्टार्टिंग में बताया था वो पाथ फंक्शन है. ओके, अब प्रेशर वॉल्यूम टाइप के लिए हम उसको और एक्सटेंड करते हैं इक्वेशन को, और जो एक्सप्रेशन निकलता है वो है W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इन टू V2 माइनस V1, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V, V2 माइनस V1. ओके, तो फर्स्ट हम क्या कंसिडर करेंगे, कंसिडर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस at constant pressure is enclosed in a cylinder fitted with frictionless rigid movable piston with area of area A. ओके, क्या कंसिडर किया है हमने, ये सिलेंड्रिकल वेसल है. ओके, पिस्टन है जो गैस के एक्सपांशन पे इजीली मूव होगा. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसको हम एक्सटर्नल प्रेशर बोलेंगे जो पिस्टन पे अप्लाई हो रहा है. इंटरनल प्रेशर P हमने कंसिडर किया है गैशियस मॉलिक्यूल का प्रेशर. ओके, और ये इसका एरिया है, ए कंसिडर किया है एरिया. ओके, और वॉल्यूम सिस्टम का V, और जो ये डिस्टेंस कवर करेगा आफ्टर एक्सपांशन दैट इज़ D. ओके, और इनिशियल वॉल्यूम जो है दैट इज़ V1. ओके, और आफ्टर एक्सपांशन वॉल्यूम विल बिकम V2. लेट वॉल्यूम ऑफ द गैस बी V1 एट टेम्परेचर T. On expansion, the force exerted by a gas is equal to area of piston multiplied by pressure with which gas pushes against piston. This pressure is equal in magnitude and opposite in sign. Okay, to the external atmospheric pressure that oppose the movement and has its value minus P external. दस. ओके, माइनस साइन क्यों दिया है फोर्स का, C. P एक्सटर्नल माइनस क्यों है, क्योंकि रिएक्शन जो है इनसाइड दी
सिलेंडर हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन सिलेंडर के अंदर हो रहा है, और एक्सपांशन के बाद जब प्रेशर अप्लाई होगा तो वो अपोजिट प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर है, ओके। गैस मॉलिक्यूल विल ट्राई टू गोज अपवर्ड, ओके, और एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो दो अलग अलग डायरेक्शन है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन जो है एक्सटर्नल प्रेशर के लिए, फोर्स के लिए, इसीलिए क्योंकि इसका फोर्स अपोजिट है टू दी गैशियस मॉलिक्यूल, ओके, अपोजिट साइड पे। तो फोर्स को हम लिखेंगे पी एक्सटर्नल, वर्क जो होता है पी एक्सटर्नल इंटू ए। When P external is external atmospheric pressure, okay, P external is external atmospheric pressure. If piston moves out a distance d, then the amount of work done is equal to force multiplied by distance. फोर्स W का हमने स्टार्टिंग में बताया था, फोर्स इंटू D होगा, यस। और फोर्स क्या है, P एक्सटर्नल माइनस P एक्सटर्नल इंटू एरिया, जितना पिस्टन का एरिया है, और फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। F अपॉन ए इज इक्वल्स टू D, प्रेशर बोलते हैं हम उसको, प्रेशर इज इक्वल्स टू F अपॉन ए माइनस P एक्सटर्नल इंटू ए। फोर्स के प्लेस पे हमने क्या रखा है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू ए इंटू D, डिस्टेंस कवर्ड बाय द gaseous molecule after expansion, okay. The product of area of piston and distance it moves it is the volume change delta V, okay. V1 से इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 होगा, तो हम चेंज इन वॉल्यूम को बोलेंगे डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम, ओके। तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू A इंटू डिस्टेंस, D क्यूब होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो A इंटू डिस्टेंस, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, D स्क्वायर इंटू D, दैट इज D क्यूब। वॉल्यूम के प्लेस पे हम लिख सकते हैं D क्यूब, D क्यूब इज V। चेंज इन वॉल्यूम के लिए लिखेंगे V2 माइनस V1। तो फाइनल इक्वेशन और फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, ओके। ये एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। ये एक एग्जांपल है फॉर एक्सपांशन के लिए। एक्सपांशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, where V2 is final volume of the gas. When gas expand, work is done by the system on the surrounding, okay. ये एक इम्पॉर्टेंट है कि गैस अगर एक्सपांड हो रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। वर्क कहाँ हो रहा है, सिस्टम में हो रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है किस पे, सराउंडिंग पे। इफ W इज, सिंस W इज ग्रेटर देन W1, W2 जो है, W2 वॉल्यूम 2 V2 जो है इज ग्रेटर देन V1, वॉल्यूम सेकेंड वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम जो है उसका वैल्यू ज़्यादा है, ओके, देन V1, एंड W इज नेगेटिव। कैसे W, प्रेशर नेगेटिव है, ओके, ये वैल्यू जो है ये भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, फाइनल जो आंसर होगा वो भी नेगेटिव होगा। W इज नेगेटिव, वर्क इज डन by the system on the surrounding, pressure is negative, V2 का वैल्यू बड़ा है तो क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 प्लस और माइनस साइन होगा, तो W जो होगा फाइनल वैल्यू वो नेगेटिव में आएगा। तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ओके। When gas compressed, work is done on the system by the surrounding। ये कैसे होगा, इसमें क्या होगा, गैस कॉम्प्रेस हो रही है मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम जो होगा V2, फाइनल वॉल्यूम V2 जो होगा वो कम होगा, यस, और V1 इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो वर्क विल बी पॉजिटिव। Work is done by the system, work is done on the system by the surrounding, okay। फ्री एक्सपांशन किसको बोलेंगे, फ्री एक्सपांशन, यहाँ पे दो कंडीशन है जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ओके। और फ्री एक्सपांशन मींस एक्सपांशन अगेंस्ट जीरो अपोजिंग फोर्स, मतलब कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर
अपोजिट फोर्स ही अवेलेबल नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, पिस्टन के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ओके, तो ऐसे एक्सपांशन को हम फ्री एक्सपांशन बोलेंगे। सच एक्सपांशन अकर्स इन वैक्यूम। ओके, अगर एटमॉस्फेयर में हो रहा है तो एटमॉस्फेरिक में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यस, वैक्यूम में रिएक्शन हो रहा है तो वैक्यूम में एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। द वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग सच एक्सपांशन इज गिवन बाय इक्वेशन 4.5। वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। When the gas expands in vacuum, there is no opposing force, that is P external, and hence W is equals to 0. In other words, no work is done when gas expands freely in vacuum. Okay? फ्री एक्सपांशन में W का वैल्यू 0 है, मतलब नो वर्क इज डन व्हेन गैस एक्सपांड। अपोजिट फोर्स अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये कंडीशन जो है फ्री एक्सपांशन का जो कंडीशन है वो वैक्यूम में अप्लीकेबल है। यस, एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर होगा और एक्सटर्नल प्रेशर कम या ज़्यादा हो सकता है, बट ज़ीरो नहीं हो सकता एटमॉस्फेरिक प्रेशर में।